نام میں آج شب آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا سلامتی سے یہاں پر لے کر آیا، ہم سب کو جمع کیا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ کیونکہ فرسٹ آف آل ہمیں شکر گزار خداوند کے رہنا بہت ضروری ہے۔ آمین۔ ہم اس کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنی حضوری میں لایا ہے۔ آمین۔ کیونکہ یاد رکھیں، میں نے بچپن میں سیکھا تھا کہ دعا کا اصول، کہ دعا کا طریقہ کار کیا ہے، اور کسی خادم نے مجھے بتایا تھا، میں چھوٹا سا تھا، اور کسی خادم نے مجھے بتایا تھا کہ دعا کا طریقہ کار اصل میں ہے کیا، کہ جو خدا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 سٹیپ ہیں۔ 3 سٹیپ کون سے ہیں؟ پہلا شکر گزاری کا، دوسرا تعریف کا، اور تیسرا کیا ہے؟ خدا سے لینے کا۔ آمین۔ ہم تو پھول لینا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ملتا نہیں ہے، اس لیے مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، ملتا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ملے گا جب آپ پراپر طریقے سے کیا کریں گے؟ خدا سے مانگیں گے۔ آمین، ہیلیلویا۔ اور پھر میں آپ کے خوبصورت خادم جو سدا جمع ہیں، سدا جمع رہتے ہیں، آمین، پاسٹر فرحان صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اپنی پیاری بہن کا اور ان کی ساری ٹیم کا، اور آپ پورے چرچ کا، کہ جنہوں نے آج مجھے مدعو کیا، یہاں پر آنے کی اجازت دی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ چرچ آج رینٹ پر ہے، لیکن خداوند آئندہ دنوں میں آپ کو اپنی پراپرٹی دے۔ میں نے کہا آپ کی ذاتی پراپرٹی ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں چیز، خادم منہ سے نکالتا ہے جب بات کوئی بھی، اب ہم کہتے کیا ہیں کہ خداوند تیرا خادم نہیں بلکہ تیرا روح بولے، تو کیا روح سے کوئی کام ناممکن ہے؟ تو پھر جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمین، کیا کہتے ہیں؟ تو اس لیے سیکھیں کہ جب آپ کو دعا مل رہی ہو تو آپ کا کام کیا ہے؟ پورے جوش کے ساتھ آمین بولنا، کیونکہ یہ خدا آپ کی سنے گا، یہ خدا آپ کی سنتا ہے۔ آمین، کیونکہ اس لیے کہ جب ہم خدا کے ہیں، خدا ہمارا ہے، تو پھر ساری چیزیں بھی ہماری ہیں، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا۔ آمین، سارے بولے ہاللویا، زور سے بولو ہاللویا، ٹھیک مزہ نہیں ہے، زور سے بولو ہاللویا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو ہاللویا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو ہاللویا۔ صحیح نہیں، آواز گلی سے باہر جا کے تو ٹھیک، سارے زور سے بولو ہاللویا۔ کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ میرے چرچ میں وہاں پر آئیں گے، وہ بھی پاسٹر فرحان صاحب کی چرچ ہے، وہاں پر آپ آئیں گے آپ کو آواز ایسی ملے گی، کیونکہ میں ان کو کیا کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں، کہاں؟ ہیون کی، کیونکہ ہم وہاں کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ ہیلیلویا، کیونکہ ہیون ہمارے لیے ڈیزائن ہوا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں کہ جب ہمیں اچھی یہاں پر تعریف کرنا آگی خدا کی تو ہم پکے وہاں کے ہیں۔ ہیلیلویا، کیونکہ آدمی کوئی بھی کسی بھی ملک پہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کا رہنا وہاں پر ایزی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہاں کے رول ریگولیشن یا آپ کو وہاں کی زبان آتی ہے، پھر آپ کا رہنا وہاں ممکن ہوتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے یہاں ہم زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں، وہاں جا کر خوبصورت ورشپ کریں گے۔ آمین، ہیلیلویا، سارے زور سے بولو ہیلیلویا۔ بہت اچھی ورشپ بچوں نے کی ہے، اور بھائی نے بھی بہت اچھی ورشپ کی، اور ساتھ بجانے والوں نے بھی بہت اچھا بجایا ہے۔ لگ رہا ہے کہ باہر چلے گئے، میرے خیال میں پسینہ میں سنا آ گیا۔ ہاں، یہ روایت ہے، خدا ان کو بھی جو ہے وہ اچھی روایت ڈالے۔ ہیلیلویا۔ اب اس کتنے لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے، یہ سارے کہیں کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ آمین، اچھی بات ہے، خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ آئیے ہم خدا کی مقدس کلام کی طرف بڑھیں گے۔
खुदा के मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा ईमाल की किताब, उसका 3 बाब 19 आयत। ईमाल की किताब 3 बाब 19 आयत। एक ही आयत पढ़ने में कोई भी रहनुमाई कीजिएगा। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है जी, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत हो। देन हाथ उठाकर आमीन बोल दीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि बस तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। अब कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा की हुई है? तौबा हो गई। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने तौबा की हुई है, बहुत सारे लोग हैं कि अभी तक वैसे ही फ्री हैं। अब यहां पर क्या लिखा है कि बस तौबा करो और फिर रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हो जाए, मिटाए जाए, और इस तरह खुदा के हाथ से ताजगी के दिन आए। अब कितने लोग हैं कि यहां पर जिसको कोई परेशानी नहीं, कोई है जिसको कोई टेंशन नहीं? देख लीजिएगा। आमीन। अब सुने मेरी बात, मामला क्या है? यहां पर लिखा है कि बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदा के हाथ से ताजगी के दिन आए। यानी हर शख्स जो है वो चाहता है कि मैं खुशहाल हो जाऊं। हर शख्स कहता है कि मैं क्या हूं, बेहतरीन लाइफ गुजारूं। हर शख्स चाहता है कि मेरे पास अपना घर हो, खूबसूरत घर हो। हर शख्स चाहता है कि मेरी औलाद पढ़ी लिखी हो। हर शख्स चाहता है कि मेरी औलाद जो है बाहर की कंट्री के अंदर किसी जगह पर सेटल हो। हर शख्स चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो। हर शख्स चाहता है मेरे पास बंगला हो। हर शख्स चाहता है मैं अच्छी सोसाइटी में रहूं। लेकिन करना क्या है? ये सारे काम मुमकिन हैं, लेकिन उस वक्त कि जब हम क्या करेंगे, हम तौबा करेंगे। जब हम क्या करेंगे, हम तौबा करके खुदावंद की तरफ क्या करेंगे, रुजू लाएंगे। आप कहेंगे कि हमने तो तौबा की हुई है। आप कहेंगे कि हमने क्या की है, तौबा की हुई है। हम अब हमें क्या करने की जरूरत है? क्योंकि हम तौबा हमने की हुई है, हम इबादत भी करते हैं, हम दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं। लेकिन कोई अगर हमें कुछ हमारे लिए बुरा कहकर चला जाए तो हम माफ भी नहीं करते उसे। तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, और कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन कोई बुरा कहकर जाए कहां पर? ऐसा है या नहीं है? मैं झूठ तो नहीं कह रहा, क्योंकि सच सच मैं बातें करूंगा इसलिए ताकि हमारी हालतें क्या हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, ताकि हम ताजगी को रिसीव करें। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि इसलिए कि याद रखें कि लिखा है कि बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हो जाएं, मिटाए जाएं। इस तरह खुदा के हाथ से ताजगी के दिन आए। हमें करने की क्या जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है। अपने भाई को माफ करने की जरूरत है, अपनी बहन को माफ करने की जरूरत है, अपने दोस्त को माफ करने की जरूरत है, अपने पड़ोसी को माफ करने की जरूरत है, अपने कलीग को माफ करने की जरूरत है। क्योंकि इसलिए कि हमारे अंदर ये हावी है कि हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुस्सा एक आम आदमी से ज्यादा भरा हुआ होता है या नहीं है? मैं झूठ तो नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसे ईमानदार भी मैंने देखे हैं। इधर से क्या है कि दुआ से उठे हैं, इधर बच्चे ने कुछ कर दिया तो वो जबान बोली जो किसी ने नहीं बोली, ये तारनार भी नहीं बोलेगा। ऐसा ईमानदारों में भी पाया जाता है। मेरे जिलो वक्त करीब है, अब वो वक्त नहीं है, क्योंकि लिखा है, यूहन्ना ने कहा दरख्तों की जड़ों पर क्या है, कुल्हाड़ा रखा हुआ है। इसलिए अब वो वक्त है कि हम तैयार हो जाएं। हमें क्या करने की जरूरत
ضرورت ہے. ہمیں اپنے اوپر سے گرد جھاڑنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں, میں کچھ بھی کر لوں گا کچھ نہیں ہوتا. ارے یاد رکھو سزا ہم ہی زیادہ پائیں گے, کیونکہ اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں, گنہگار جانتے نہیں تب تو گناہ کرتے ہیں, اس لیے ان کی معافی ہو سکتا ہو جائے. لیکن ہم جو جانتے ہیں جان بوجھ کے بھی کیا کرتے ہیں, ہر روز کے طور پر کیا کرتے ہیں, ہر روز کی بنا پر کچھ نہ کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر غور ہی نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ہماری نگاہیں ان کی طرف ہے, ہماری نگاہیں شراب پینے والے کی طرف ہے, ہماری نگاہیں ان کی طرف ہے جو گالیاں دیتے ہیں, ہماری نگاہیں ان کی طرف ہے جو کسی کی اچھوائیاں کرتے ہیں, کیونکہ ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی بھی اپنی طرف دیکھ نہیں رہا. کیونکہ اس لیے پالوس رسول نے کیا کہا, یہ لیٹر جو لکھے ہیں کن کو لکھے ہیں, مقدسینوں کو لکھے, یہ گنہگاروں کو, یہ مقدسینوں کو لیٹر لکھے ہیں. کیوں اس نے کہا کہ بس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو, کیونکہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت. ہر شخص آج دوسرے کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہے, کہ آج فلاں نے یہ کر دیا, فلاں پادری یہ کر رہا ہے, فلاں ایماندار یہ کر رہا ہے, فلاں بہن یہ کر رہی ہے, میری پڑوسن ایسی ہے, میرا پڑوسی ایسا ہے, میرا کلیگ وہاں پر ایسا, میں نے بھی کھری کھری سنا دی. تو کہاں کا ایماندار ہے؟ اس لیے یاد رکھو ہمیں ان چیزوں کی کیا کرنا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا تھا, کتنا بڑا گناہ تھا قاضی صاحب, کتنا بڑا گناہ تھا آدم نے کیا. کیا اس نے زنا کاری کی, کیا اس نے قتل کیا؟ صرف سمپل سی یہ بات نہیں مانی کہ فار ایگزامپل اس دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا, اور میں نے لگا لیا, میں نے کیا کر لیا, گناہ کر لیا. کیونکہ دیکھا خدا کی بات نہ ماننا ہی گناہ ہے. اس لیے یاد رکھو کہ ہم جب ایماندار ہیں تب تو ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی وقت تو ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنی باتوں پر, اپنے چال چلن پر, اپنے دیکھنے پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ کیا کر رہا ہے تو ایماندار ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ہوتا یا نہیں ہوتا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی یہ خوبی جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھو عزیزو, جتنے بھی لیٹر لکھے ہیں وہ ایمانداروں کو لکھے ہیں, ایمانداروں کو مضبوط کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں. آمین, ہاللویا. سارے زور سے بول دو ہاللویا, زور سے بول دو ہاللویا. اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا اس میں کیا ہے, بس توبہ کرو. توبہ کس سے کرنی ہے؟ اپنے گناہوں سے. کس سے کرنی ہے جی؟ گناہوں سے کرنی ہے. اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے تو ہمیں توبہ کرنے کی کیا ہے ضرورت. اب دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع یہاں پر کیا ہے, موجود ہے یا نہیں ہے, بولے ہے یا نہیں ہے, یسوع یہاں پر موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں, لیکن جو رہے ہی یسوع کے ساتھ ہے, جو رہے ہی یسوع کے ساتھ ہے, ان کو کتنا بڑا شرف حاصل تھا, یسوع کو چھو بھی سکتے تھے. آج ہم ایمان سے چھوتے ہیں, ارے وہ تو فزیکلی چھو رہے تھے, لیکن پھر بھی یہودا کیا تھا, ساتھ ساتھ چل رہا تھا, ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پھر بھی کیا ہے گنہگار. پھر بھی وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آیا, رہتا بھی ساتھ ہے. پھر بھی اس نے کیا کیا ہے, پھر بھی اس نے سودا کر دیا, پھر بھی اس نے گناہ کر لیا, رہتا بھی ساتھ ہے. ہم تو پھر عبادت کرتے ہیں, ہم تو پھر دعا کرتے ہیں, ہم تو پھر کلام سنتے ہیں, ہم تو پھر بھی چرچ جاتے ہیں, اور ایمان سے کہتے ہیں کہ یسوع کی حضوری ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے. لیکن وہ تو کہاں رہتا تھا, وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا, تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی. میں بھی خطرناک سیکھتے ہیں, اس لیے تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی, اور وہ لکھا کہ اکثر اس میں ہاتھ مارتا تھا. اور آگے کیا کیا, چھوٹا چھوٹا گناہ کو اہمیت نہیں دی اس نے. میں پڑھ رہا تھا کہ لالچی آدمی بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا, جھوٹ بولنے والا بھی نہیں جائے گا. میں اس دن پڑھ رہا تھا, میں نے کہا چھوٹے چھوٹے گناہ یہ تو روزمرہ کی زندگی کے اندر ایمانداروں کے ہو جاتے ہیں, یہ تو معمول کا حصہ ہے. لکھا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے.
میں نے کہا ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کس بات کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں، ہم خدا کی بادشاہت میں چلے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. میں نے کہا ہم ایمانداروں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر ایک گال پر کسی نے تماچا مارا دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. آمین. لیکن ہم نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ عزیزان نے جفا پا لینے ہیں بات جو 10 لوگ جا کر خبر سنانے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، گنہگاروں کی نہیں. ایمانداروں کے اندر ایسی عادتیں ہیں. اس لیے یہ کلام کن کو لکھا گیا؟ مضبوط کرنے کے لیے ایمانداروں کو لکھا گیا. لیٹر جتنے بھی لکھے ایمانداروں کو مضبوط کرنے کے لیے. جو ان میں کمیاں تھی کیا کیا؟ پولس نے لیٹر لکھ دیے، یوحنا نے لیٹر لکھ دیے، پترس نے لیٹر لکھ دیے، تیتس نے لیٹر لکھا، تimotheus نے لیٹر لکھ دیا. اس سے یاد رکھو ایمانداروں کو مضبوط کرنے کے لیے بس کیا کرو؟ توبہ کرو. بس کیا کرو؟ سارے بولو توبہ کرو. بس توبہ کرو. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں کیونکہ آدم کا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، کوئی زناکاری نہیں، کوئی اس نے قتل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بات ہی نہیں مانی. اور لکھا ہے کہ خدا کی بات نہ ماننا ہی کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے یاد رکھو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گریز کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو توبہ کرنی ہے، چھوڑنا ہے. خدا میں نے اپنی بہن کو صبح کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا. میں نے اپنے بھائی سے جھوٹ بولا، اپنے پاپا سے جھوٹ بولا، اپنی ماما سے جھوٹ بولا تھا. میں معافی چاہتا ہوں. آمین. کیونکہ اگر تازگی دیکھنا چاہتے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تازگی نہیں آ رہی، پھر کہتے ہیں کہ ہم کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود کھچڑی پکا رہے ہیں. خدا بھی کیا کر رہا ہے؟ غور نہیں کر رہا. کیونکہ نیچے کیا ہے؟ کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا. نیچے صحیح نظر نہیں آ رہا، اس لیے خدا بھی کیا کر رہا ہے؟ خدا بھی غور نہیں کر رہا، اس لیے تازگی نہیں آ رہی. اس لیے یاد رکھو ایماندار لوگوں، بعض ایمانداروں کی کیا عادت ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ سنڈے کے سنڈے ہی کیا کریں گے؟ چرچ کریں گے. انہوں نے سنڈے کے سنڈے ہی چرچ کرنا ہے. اگر فرائیڈے میٹنگ آپ آئے، خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ جتنے بھی آپ آئے ہیں بہت سارے ایسے ایماندار ہیں جو سنڈے کے سنڈے ہی خالی آئیں گے. انہوں نے ٹھہرا لیا جی بس توبہ کر لی اور سنڈے کے سنڈے چرچ جانا ہوئے. بس دعائیں لائی کی نہیں ہے، کوئی پتا نہیں. کلام پڑھتے ہو، کوئی پتا نہیں. اب اس کتنے لوگ ہیں کہ جو 1 گھنٹہ دعا روز کرتے ہیں؟ سچ سچ بولے آجے، چھوٹنا کیا آجے؟ ویری گڈ. جڑے ایک گھنٹہ دعا کر ایتھے ہوندا ہے نا تو وہ کہنے سے کبھی کہہ جاتا ہے گا چک بھی کرتے ہیں. کانفیڈنس رکھو کہ آپ 1 گھنٹہ کنے کرتے ہیں؟ ایج کھلا ہوتا ہے ایک بڑی کھلا ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگ پادشاہ پادریاں نہیں، میں کیا مطلب پادری بوا کرتے ہیں. کیونکہ میں پچھلے دنوں میں کسی کو کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کوئی بھی وہ خادم نہیں ہے کہ جس کی کلیسیا سے زیادہ دعا نہ ہو، جس کی اسٹڈی جو ہے وہ کلیسیا سے زیادہ نہ ہو. وہ خادم ہی نہیں ہے. خادم وہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ کلیسیا کا لیول یہاں ہے تو خادم کا لیول یہاں ہو تاکہ کلیسیا برکت پا سکے. آمین. ہاللیلویا. سارے بولو ہاللیلویا. اب 8 لوگ ہیں تو بات کافی سارے لوگوں نے کی ہوئی ہے. ہر روز آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ دائیں کی بھی نہیں دے رہے. آپ دائیں کی بھی نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں کہ ایماندار لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پیسے کی دائیں کی دینی ہے. اس میں بھی بعض اوقات ڈنڈیاں مار جاتے ہیں. مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ اجے خادم بدنام تھے نا جڑے وہ کہتے وہ ہتھیاں دے پیچھے دوڑے رہتے ہیں. وجہ ہی ہونا تھی یہ بھی تو ہونا تھی. کلیسیا غور ہی نہیں کرتی، غور نہیں کرتی. اس لیے خادم کمزور. خادم مضبوط ہے، کلیسیا مضبوط ہوگی. آمین. ہاللیلویا. سارے بولو ہاللیلویا. خادم گھٹنوں کے بل دعا کرنے والا ہو اور کلیسیا مضبوط ہوگی. کلیسیا کا بھی کام ہے کہ جب خادم وفادار ہے تو کلیسیا بھی وفاداری کرے. اس لیے دائیں کی دوسری تو دینی ہے لیکن آپ کی ہر روز کی ٹائم کی دائیں کی جو ہے 2 گھنٹے 24 منٹ بنتی ہے. ہر روز دو. آمین. زیادہ نہیں دے سکتے، دائیں کی تو دو. جو 10واں حصہ بنتا وہ تو دو آپ. آمین.
बस को लोग कहते हैं जी दाई की तो जो है वो जी शरीयत का नहीं है, वो मसूमियत के दौर में भी दाई की थी। मैं एक जगह कहीं पर सिखा रहा था, मैंने कहा असल में समझने की बात है, खुदा ने पाके अदर में ही 10वां हिस्सा सिखा दिया था। कैसे सिखाया था? आदम से क्या कहा? तूने ये फल नहीं खाना, बाकी सारा कुछ खा लेना। तब अपनी इनकम से क्या करते हैं? कितने हिस्से खुदा को देते हैं? 10वां हिस्सा कितना बनता है? एक हिस्सा ही बनता है। 9 हिस्से हम खाते हैं, ऐसा है या नहीं है? पूरे बाग में से सारे दरख्तों का फल आदम खा रहा था, लेकिन क्या है, एक दरख्त का फल खुदा ने कहा ये नहीं खाना। मैंने कहा दाई जो है वो बाकी अदर में से शुरू है। आमीन। कलीसिया कमजोर क्यों होती है? वजह ही है, तौबा करो इन सारी चीजों से। हर रोज की आपकी दायित्व क्या है? आपकी दायित्व पैसे की तो आपने महीने बाद देनी है, लेकिन वो भी देनी है, लेकिन हर रोज टाइम की दायित्व आपकी क्या करती है कि आपकी 2 घंटे 24 मिनट जो है वो दायित्व बनती है। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है कि नहीं है? तौबा करो और क्या करो? रुजू लाओ। पहला स्टेप ही तौबा है आपका। जो आपकी नाफरमानियां हैं उनको क्या करना है? हमने उनको तर्क करना, छोड़ना है। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, उन गलतियों को क्या करेंगे? निकालेंगे, सही ईमानदार बनेंगे, तब हम रुजू करेंगे तो हमारा खुदा क्या करेगा? ऐ मेरे बेटे फरमा तू क्या चाहता है? हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत? पहले परसों बहुत तौबा करने की जरूरत है या नहीं है? कौमों के हालात ऐसे नहीं बदलते। कौमों के हालात जो है वो बदलते हैं खुदा की असूलों पर अमल करने से। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। बड़े कितने लोग ने देने चाहिए कि दे देने? हालेलुया। तो बाकी की कर रहे हैं, टाइम की भी दो, रुपए पैसे की भी दो। आमीन। टाइम की दायित्व हमें क्या करेगी? मैं उसका भी आपको बताऊं। टाइम की दायित्व हमें कहां लेकर जाएगी? हमें खुदा के करीब ले जाएगी। इनकम की दायित्व क्या करेगी? इनकम की दायित्व जब हम खुदा के हुजूर देंगे, खुदा उसकी राहत में खुशबू लेगा, और जो बाकी 9 हिस्से होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। फिर कहते ताजगी नहीं आती, ताजगी नहीं आती। ताजगी आए कैसे? जब मैं उसूलों पर ही नहीं हूं, हैं? जब मैं उसूलों पर ही नहीं हूं तो ताजगी कैसे आएगी? इसलिए याद रखो, अगर आपने अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है तो अमेरिका के जहाज पर बैठना पड़ेगा। जो अमेरिका जा रहा है, कंपनियां तो अलग अलग मुल्कों की हैं, कोई भी लेकर जा सकता है, लेकिन जो जा रहा है अमेरिका उस पर बैठना है। और अगर हम बैठे सऊदीया वाले में तो फिर सऊदीया जाएंगे, है या नहीं है? तो इसलिए जब हम खुदा के हुजूर आए तो फिर हमें क्या जरूरत है? हमें तौबा करने की, फर्स्ट ऑफ ऑल तौबा करने की उन चीजों से जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं उन्हें निकालने की जरूरत है, उन्हें करेक्ट करने की जरूरत है। जब हम कमजोरियां निकालेंगे हम हकीकी तौर पर ईमानदार बन जाएंगे। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। एक औरत आई, यीशु हैकल में कलाम सुना रहा था, एक औरत आई बाहर, शोर पड़ गया। शोर क्या था कि ये बदकिरदार औरत है। यीशु आ गया और यीशु को यहूदी क्या कहने लगे? वो क्या फकीर फरीसी क्या कहने लगे? कहते हैं कि खुदावंद कलाम में लिखा है कि जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाए उसे क्या करो? पत्थर मार कर संसार कर दो। तो यीशु ने क्या किया? क्योंकि वो अपने तक राजपाल जानते थे अपने आप को। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने जमीन पर बैठकर लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू कर दिया, तुम में से पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। आमीन। अब सबने गुनाह किया था, वो भी ईमानदार थे। मैंने क्यों आपसे पूछा है? इसलिए वो भी ईमानदार थे। एक एक करके सारे चले गए। यीशु उठा और क्या कहा? जा बेटी, जा चली जा, सलामत चली जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, दोबारा गुनाह न करना। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें रुजू करने की जरूरत। यीशु शमौन कोढ़ी के घर में खाना खा रहा था। हुआ क्या? जब खाना खा रहा था, यीशु बैठा हुआ है, और जब बैठा हुआ है तो वहां पर कौन आई है? एक औरत आई है, जो कौन है? बदकिरदार औरत है, बुरी औरत है। शमौन, जब यीशु ने उसे छुआ तो शमौन ने कहा कि ये उसे छूता है, ये गुनहगार है। वो तो यही समझते थे ना कि नबी होता तो जान जाता है। तुम्हें क्या पता कि उसके छूने से होगा क्या? हालेलुया। तुम्हें क्या पता कि उसके छूने से होगा क्या? उस औरत ने क्या किया है? रोती है। कहां पर? कदमों में यीशु के, और कदमों में रोती है। आंसुओं से उसने क्या किया है? आंसुओं से उसने यीशु के पांव धोए, क्योंकि यहूदियों के अंदर यही रिवायत थी कि वो अपने मेहमानों के शमौन ने तो धोए नहीं, लेकिन वो औरत आ गई और उसने आंसुओं से पांव धो दिए, और फिर किया क्या है? अपने बालों से साफ कर दिए। जब रो रही है तो यीशु ने क्या कहा? जा बेटी, दोबारा गुनाह ना करना। यही तो औरतें थी कि जो यीशु के पीछे पीछे चलती थी। आमीन, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जिनकी कदर जमाना नहीं करता, अगर यीशु उनकी जिंदगी के अंदर आएगा, मैं कहता हूं जमाना हाथों पर उठाएगा। हालेलुया। जमाना हाथों पर उठाएगा। मामला ये है कि कूड़े करकट में क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि यीशु अगर उठा लेगा, जमाना सलाम करेगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मामला क्या है कि उनकी कदर क्यों हुई है? कदर इसलिए हुई कि वो यीशु की तरफ कौन की आई है? वो रुजू लाई है, यीशु की तरफ आई है, क्योंकि उनका काम तो बदकिरदारी था, लेकिन वो यीशु की तरफ गई है। जब यीशु की तरफ गई तो यीशु ने उनकी हालतें तब्दील कर दी है। और वही तो है कि जो सुबह सवेरे सबसे पहले खुशखबरी लेकर आई कि यीशु मसीह है, खुदावंद मसीह जिंदा हुआ है। हालेलुया। ये वही तो इसलिए तो कदर बढ़ी है। शागिर्द क्या कर रहे हैं? शागिर्द अंदर है, कमरे में है, डर रहे हैं, लेकिन यही बहनें गई हैं वहां पर, खुशखबरी को लेकर आई है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। छोटे छोटे जन हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आपकी कदर उस वक्त बढ़ेगी जब आप खुदावंद की तरफ क्या करोगे? रुजू लाओगे। जब आप खुदावंद की तरफ फिर जाओगे, खुदावंद आपकी तरफ आएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप अपना कदम तो बढ़ाकर देखो यीशु की तरफ, यीशु खुद आएगा। आमीन। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो 2 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है लूका की इंजील मुकद्दसा में, लूका की इंजील मुकद्दसा में लिखा है कि वहां पर एक शख्स था जो जिसका नाम क्या था? ज़िक्कई, जो नन्हे कद का था, छोटे कद का था, छोटे कद का था। वो वहां पर था, और वो था कौन? मसूल लेने वालों का सरदार था। तारीख बताती है कि मत्ती जो था, जो मसूल लेने वाला था, जिसे यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, वो यीशु के पीछे चलने लगा। और हुआ क्या? इसने ही कहा, ये सरदार था उसका, ये कौन था? उसका बॉस था। इसने उसे कहा कि तू मत छोड़, क्या करेगा? गुआर हो जाएगा, बैठ जा। वो कहता ये नहीं मैं कहता, तारीख बताती है, कहता मैं ये नहीं जानता कि गुआर होगा या नहीं होगा, मुश्किल में पड़ूंगा या नहीं पड़ूंगा, ये जानता हूं कि जो मुझे कहता है वो कोई मामूली शख्स नहीं है। इसलिए क्या किया है कि उसने क्या किया? उसने क्या किया कि उसने सुना, अच्छा ऐसा है, मामूली शख्स नहीं है। फिर उसने भी सर्च शुरू कर दी, उसने भी सुना। यीशु ने क्या किया? नाइन शहर के बेवा के बेटे को क्या किया कि मुर्दे को जिंदा कर दिया। उसने क्या किया है कि लाजर 4 दिन का मुर्दा था, उसे जिंदा कर दिया। उसने क्या क्या सुना? उसने सुना कि वो बदकिरदार औरत गुनहगार थी, उनके गुनाह यीशु ने माफ कर दिए। और उसने बहुत कुछ, उसने 38 साल के बीमार के लिए सुना। उसने सब कुछ जब सुना तो कहता है मैं भी देखूंगा कि है कैसा। हालेलुया। मैं भी देखूंगा है कैसा। वो क्या हुआ है? उसका माइंड यीशु की तरफ गया है। जब दिल दिमाग उसका यीशु की तरफ गया है तो क्या हुआ है छोटे कद का। जब छोटे कद का है तो क्या हुआ? भागकर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया कि यीशु यहीं से गुजरेगा। अब वो कैसे चढ़ा होगा ये छोड़े इन बातों को, क्योंकि वो है छोटे कद का, मुश्किल ही चढ़ा होगा है। जब वो ऊपर चढ़ गया है, यीशु वहां पर आया और यीशु वहीं पर रुक गया है।
हालेलुया। क्योंकि इसलिए वो यीशु की तरफ रुजू लाया। अब यीशु का भी काम बनता है। यीशु बेइंसाफ नहीं है कि जो उसकी तरफ आया वो उनसे मुंह फेर दे। नो, वो ऐसा बेइंसाफ नहीं है। वो उसकी तरफ आया है। यीशु वहां आया गुलर के पेड़ के नीचे, कहता है जल्दी से उतरा, जकई मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जोरदार तारीफ कर दो, खुदावंद की जोरदार तारीफ कर दो, जोरदार तारीफ कर दो। क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। अभी देखो वो नामदार हस्ती जिसको कह दे कि मैंने तेरे घर जाना है, उसके तो बारे न्यारे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, अगर कोई बीमार पड़ा तो वो भी जिंदा हो जाएगा। अगर आपका फाइनेंस मरा हुआ है तो मैं कहता हूं वही दिन है आपके फाइनेंस से जी उठेगा। हालेलुया। मैंने कहा दुनिया आपकी कदर नहीं करती, वही तो दिन है आपकी कदर बढ़ने का। हालेलुया, हालेलुया। करंदस के घर में पौलुस ने क्या कहा, ऐ भाइयों अपने बुढ़ापे पर गौर करो कि हम क्या थे, हम निकम्मे बेवजूद थे, हम क्या थे, हम हमारी कदर ना थी, लेकिन जब उसने चुन लिया तो हमारी कदर बढ़ा डाली। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि वो आया उसके घर में। अब लोग फकी फरीसी अगे तार चलेंगे सर। आज भी बहुत सारे फकी फरीसी क्या है, अपने आप ईमानदार समझते, लेकिन फकी फरीसियां दी रूह उन्होंने अंदर काम करती है। आप अपने से लगा लो, हैं? आप अपने से लगा लो। आप कहीं चले जाओगे, पास प्रधान चले जाएंगे ना, तो किसी खानदान में काम होना चलेगा कि कोई दूसरा बंदा है ना प्या, वो याद ओनली जीसस ही हैं, उन्हें तेरा सिर फाड़ देता है, तेरे गुस्सा लग गया कि ओनली जीसस ही। भाई अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है इधर उधर होंदा, अब वक्त नहीं है एक दूसरे को उंगलियां करन दा, अब वक्त की है अपने आप को दुरुस्त करन दा वक्त है। इसलिए फकी फरीसी वहां पर क्या कहने लगे कि ये तो गुनहगार के यहां जा उतरा है, वो तो गुनहगार है, टैक्स कलेक्ट करने वालों का सरदार है, मामूली आदमी नहीं है, बहुत अमीर आदमी था, उसके घर में यीशु गया है, लेकिन है क्या, उस पर एलिगेशन क्या है कि ये गुनहगार आदमी है, लोगों के साथ नाजायज करता है। यीशु वहीं पर आया। अब तबीब की किसको जरूरत है? बीमार को जरूरत है, तंदुरुस्त को जरूरत है? बीमार को जरूरत है। इसलिए यीशु उसके जब घर में गया है, क्या इसलिए नहीं है कि वो गुनहगार है तो मैं उन्हें कहा जाना कि गुनाह माफ कर, यीशु मैंने गुनाह माफ करने का कोई शौक नहीं है। इस वजह से आया है कि गुनहगार उसकी तरफ रुजू लाया है। हालेलुया। गुनहगार उसकी तरफ फिरा है, इसलिए यीशु आया है। और जब यीशु आया है तो वहां पर लिखा क्या है? वहां पर लिखा है कि उसने क्या किया, लोगों ने तान शुरू कर दी यीशु को बुरा बुरा कहने लगे शुरू हो गए, यीशु पर इल्जाम लगाने शुरू हो गए। तो हुआ क्या कि वो शख्स उठा, गैरत आ गई, वो बैठा हुआ था, उठ खड़ा हुआ, कहता है यीशु सुन लो, यीशु सुन, मैं अब क्या करता हूं, अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का नाहक कर लिया है तो 4 गुना अदा कर देता हूं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो बाकी छत पे पत्थर ले लो ना, थले छोड़ दो, हैं? तो बहन, अरे यही तो है तौबा कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको बाहर निकाल फेंको। आमीन। उसके ऊपर इल्जाम यही था कि वो नाजायज करता है। उसने कहा आधा माल गरीबों को देता हूं, और क्या हुआ कि किसी का नाहक कर लिया तो 4 गुना अदा करता हूं। तो यीशु ने भी क्या कह दिया? यीशु ने कहा आज इस घर में सारे ऊंची बातें बोलो, आज इस घर में जोरदार तारीफ करते हुए बोलो, आज इस घर में, आज इस घर में, आज इस घर में निजात आई है। वजह क्या है? जो कमियां हैं निकालो। आमीन। निजात खुद ब खुद आ जाएगी। निजात रुपए पैसे नहीं खरीदी जाती, निजात खुद ब खुद आ जाएगी जब आप क्या करोगे, अपनी कमजोरियों को बाहर निकालोगे। हालेलुया। मेरी तो दुआ है चर्चा में जान गान वाले भी की हों, तौबा करके बदकिस्मत याफ्ता हों। आमीन। ताकि ऐसा ना हो जेड़ा बाहर बूट टूट जाते ने ना हवाले ए ना जान, क्योंकि कलाम तो आगे लग जाती है बात बात। मैं ये सॉरी, मैं बजाने वालों से माफी कर चाहता हूं, लेकिन ये मैं जर्नल बात कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। सुलेमान की हैकल में कौन थे? शराबी थे बजाने वाले? शराबी नहीं थे, मुकद्दसीन थे। इसलिए तो जब 7 बजे तो क्या हुआ, वहां कहीं फैल ना सके। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और वो आज भी ढूंढ रहा है हम सबको। आमीन। अब से कहीं ने क्या कर ली है? निजात पा ली है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਦਿਆ ਹੋਵੇ? हैं? उन्होंने कहन कौन दिया है? वो जो हेवन का मालिक है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। वो बपतिस्मा लवे या ना लवे, जेड़ा खड़न दिया वही बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये तो क्या था कि उस वक्त थी शरीयत के मुताबिक वो नटके कद का आदमी क्या था, वो खुदा के हजूर कुछ गुजरान भी नहीं सकता था, क्योंकि शरीयत यही बताती थी, हैं? जिसकी उंगली कटी हुई है, जिसकी आंख खराब है, कान खराब है, टांग खराब है, छोटे कद का है, फीना भी, हैं? फीना भी खुदा दी, वो भी बारिश सारे बात, लेकिन यीशु ने की किताब है, यीशु ने आके की किताब है, उन्होंने कहा छोटे कद हो, फीने हो, काने हो, लगड़े हो, लूले हो, सारे आ जाओ। के लिए बुला लिया है। आमीन, हालेलुया। बात यही है कि उसकी तरफ रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हो जाए, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। इसके गुनाह मिटाए गए और निजात आ गई है। आमीन। और खुदा के हाथ से क्या आ जाए, ताजगी के दिन आ जाए। हालेलुया। इसलिए याद रखो मेरे अजीजों, जो आपके अंदर खामी है उसे निकालना है। पालूस रसूल के अंदर क्या थी? जब वो शाऊल था, खामी क्या थी? वो कच्चों को मारता था वो शरीयत के मुताबिक चल रहा था, शरीयत के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन वो मसीहत को समझ नहीं रहा था, मसीह को समझ नहीं रहा था, इसलिए उसके अंदर खामी क्या थी। लेकिन इसलिए दमिश्क की राह में यीशु ने उसे पकड़ लिया, उसने खामी निकाली है। 3 दिन जो है वो क्या हुआ है, अंधा रहा है। 3 दिन कुछ नहीं देखा, लेकिन चौथे दिन देखा है तो एक मुकद्दस शख्स की शक्ल देखी, मुकद्दस शख्स की शक्ल देखी जिसमें यीशु नजर आ रहा है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, हम जितने भी ईमानदार हैं हमें मजबूत होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हमें ये जरूरत नहीं है कि कलाम बहुत अच्छा था, कलाम उस वक्त अच्छा होगा जब हम उस पर अमल कर रहे होंगे। आमीन। फिर मेरे लिए वो कलाम क्या है, वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बाप बढ़कर ठहर गया है। बाद बाद हम छुपे कई हमने यहाँ, क्योंकि ओकी कहता है वो भी तो नारे मारता ही नाल, कौन यहूदा अक्सर यूटी भी तो नारे मारता ही था, सारा कुछ करन दिया सी, नाल ही चलन दिया सी, वो तो साडे नालों अजीम सी कि नाल चलन दिया सी, हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ महसूस करते हैं रूह दे विच। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बस तौबा करो और क्या करना है, और फिर क्या होगा, खुदा के लोगों सारे बोलो बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह खुदा के हाथ से ताजगी के दिन आए। क्या आप चाहते हैं कि ताजगी के दिन आए? अब कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइएगा जितने चाहते हैं कि ताजगी के दिन है। मैं दर्द से थलो निकल जावा, मेरे अंगों मुसीबत निकल जाए, मेरे बच्चे शराब पीते ने ठीक हो जाए, मेरे बच्चे लड़ाइयां करते ने, नशाबाजी करते ने ठीक हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाए ठीक। आमीन। तो फिर आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हाथ फ्री करने हैं आपने, कोई इथों तोड़ा पर्स पुरुष को नहीं खड़ेगा, सारे ईमानदार ने बाइबल भी रखो। अब सारे एक बात मेरी सुनो, आपने कलाम सीखा है, सीधी सीधी बातें हैं ये, हर रोज पहले भी आपने सुनी होगी बड़ी मर्तबा, जो आज रूह ने मुझे बताया मैंने वही आपको सिखाया है, जो रूह ने आपसे बात की है। ये आपके लिए बात बरकत ठहर सकता है उस वक्त के जब आप इसके मुताबिक चलेंगे। आमीन। अब सच्चे दिल से बताइएगा क्या हम कितने लोग हैं कि जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ ताजगी के दिन आए, तो हाथ खड़ा करें, क्योंकि याद रखें कि जो खुदा ताजगी देगा, मैं कहता हूं उसे आप समेट नहीं सकेंगे। आमीन। आपके बच्चों की तरफ से आपको दुख मिल रहा होगा, किसी को बाप की तरफ से, किसी को भाई की तरफ से, पता नहीं रिश्तेदारों की तरफ से भी मिल रहा होगा दुख, न जाने आप गुर्बत से परेशान है, न जाने कर्ज से परेशान है? हर महीने आप बैंकों में किस्तें दे रहे हैं, क्योंकि खुदा इन सारी चीजों से आजाद करने वाला खुदा है। पहले ढूंढो तुम उसकी बातचीत तो सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी, इन सारी चीजों से आप फ्री हो जाएंगे। आए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, अपने अपने गुनाहों का इकरार करना है, चाहे आपने छोटे किए हैं बड़े किए हैं, फुल हाथ ऊपर करें।
جو تھلے ہوئے نا ہم کرتے تو ادو یہ بتاؤ کہ کونی گل چھپ جاواں گے ہیں کھل ہاتھ اوپر اور دوسری چیز اے جڑی چھوٹی چھوٹی دعا ہوندی نا اے خدا نوں نہیں پسند نہ ہی مینوں پسند ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے اس اندھے نے پکارا یسوع نے نہیں سنا اندھے نے اوپر آواز لاؤڈ کی یسوع وہی رک گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع سنے تو اونچی آوازوں سے شرم محسوس نہ کرتے ہوئے اونچی آوازیں کریں اور دعا کرنی شروع کریں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کھل ہاتھ اوپر کریں کھل ہاتھ بہنیں بھائی بچے بزرگ سبھی کھل ہاتھ اوپر کریں اونچی آوازوں سے پیچھے بھی بیچ میں بھی آگے بھی سب اونچی آوازوں سے سارے اونچی آوازوں سے کھل ہاتھ اوپر کریں آپ کتنے بھی بڑے مقدس کیوں نہیں ہیں آپ کو پھر بھی خدا کی ضرورت ہے پھر بھی آپ کو خدا کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے پھر بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے حضور آئیں کیونکہ ہمیں ہر لمحہ ہر پل خدا کی ضرورت ہے خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں Hallelujah, la
बजाने वाले कह सकते हैं कि खुदा मुझे अच्छा बजाने का बहुत बख्श। आप बेशक बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा, और ज्यादा वो आपको अपने रूप से करेगा और वसत से करेगा। मैं कहता हूँ मुश्किलें, परेशानियां, टेंशनें, प्रॉब्लम्स जो आपको गिरे हुए हैं, सब जाएंगे इस नाम में, सब जाएंगे जब आप तौबा करके उसकी हुजूरी में पड़ेंगे, उसकी हुजूरी में आएंगे। आपको देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी है, गाने बजाने वाले बेहतरीन है। मैं कहता हूँ कलीसिया सारी गाने बजाने वालों के लिए जोरदार तारीफ करेंगे। अच्छी वर्शिप जो है वो सब जगह पर नहीं होती, वहीं पर होती है जहाँ खुदा के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। मतलब आपके साथ बजाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, खुदा आपको ब्लेस करे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
कि कलाम के दौरान चर्च में बैठा करो, हैं? थैंक यू। उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि क्या वो मान रहे हैं कि हम जरा गलसियात जरा कलीसिया भगो करोगे? आमीन। जोरदार तारीफ करो इनके लिए। हम लोगों के घरों को ब्लेस करें। ये खुदावंद के लिए ये मामूली खिदमत नहीं है, बहुत बड़ी खिदमत है खुदावंद के जलाल के लिए बजाना। आमीन, हालेलुया। और आप कलीसिया को वही खूबसूरत सारी और आपका काबिल उससे बढ़कर खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। वंडरफुल मैसेज। एक बार मैंने बड़ी चंगी लगी, मैं भी कर लो बाज नहीं रहना। यीशु ने फजल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਾਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫੀਨੀਆਂ ਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु ना छोटे को ना बड़े को ना काले को नीले पीले किसी ने नहीं देखता, वो सारे ने को जग समझ। आमीन। अब यीशु ने ना मर्द ना औरत सब बराबर हो गए। बहुत अच्छा मैसेज रसूल अली। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आमीन। ईमानदारों को ये बात मैंने जो आज सीखी है, मैं खुदा का खादिम हूँ और मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ और आपको सल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि रूह को जो कुछ कहता है वो फिर बोलता है, वो फिर रुकता नहीं है। आमीन। जेडे पौधे दना आकिल दानिशमंद हकीम हिकमत रखने वाले खुदा ने उन्होंने रद्द किया ते निकम्मिया तहकीरां ने चुन के तो उन्होंने इज्जत बनाई। हालेलुया। इज्जत तेरी बतावेगा। ये ईमानदारों को कलाम लिखा गया है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। चर्चिस के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स पालूस को नजर आती थी, और आज भी खुदा का रूह वही है, खादम भी वही कलाम सुनाते हैं जो कलीसियाओं को देखते हैं। आमीन। सो इस बरकत मैसेज के लिए जितनी आप तालियां बजा के यीशु की तारीफ कर सकते हो आप करते हैं। अगर वो फजल ना करता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होता। उसके फजल की मैं डेफिनेशन करूं अपने से। पादी साहब सुनिए बेटा, सुनिए सुनिए सुनिए। जब मैं अपने घर से सीढ़ियों से निकलता हूँ, मेरी बिल्डिंग में चार फैमिली है, कोई भी पहले मुझे मिलता तो कहता पादी साहब सलाम। भावे अपने अब्बे की कीती सलाम हो या ना हो, लेकिन पादरी साहब पहला सलाम करता है। फिर मैं जो गली से निकलना कोई ना कोई मिलता पादी साहब सलाम। जो मैं गैर अक़वाम से जाके ड्यूटी करना उत्थे भी मुसलमान भी मैंने कहते पादी साहब सलाम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता ये सिर्फ फजल मेरे लिए काफी है, जो कुछ की तरफ रजूल आता है उसी पर तो फजल होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या वंडरफुल मैसेज, क्या सिंपल सी बातें हैं जिसने हमें बरकत दी है। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने हदियाजात खुदा के जुर्दिन खोल कर जिन्हें कहे 10वां हिस्सा दे दो, टाइम दा 10वां हिस्सा दो ते जो ठहरा के आए हो ओ फिर करो ते यीशु ਨੂੰ पेश करो ते यीशु ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के हुजूर पास सरफराज के साथ मिलकर और गीत गाते हैं, उसके दौरान अपने हदियाजात दिल खोल कर खुदा के हुजूर पेश करते हैं। यस सर, Hallelujah. praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God.
بدل گیا وہ بدل گیا. پاس صاحب نے کلام سنایا توبہ کرنے کے بارے شامل. توبہ کرنے کے بعد کچھ کام ہوتا ہے کہ بدل جاتی زندگی. ساڑھے اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے, ساری زندگی وتیرے حیات, سارے چہرے لباس سب کچھ بدل جاتے ہیں. جنہوں نے توبہ کی ہے اور جنہوں نے زندگی بدلی ہے, اس سمجھ کے کہیں گے بدل گیا وہ بدل گیا. سارے نے کی تھی پادری صاحب کی سارے مل کے بدل گیا وہ بدل گیا بدل گیا بدل گیا میرا سارا جیون بدل گیا بدل گیا میرا سارا جیون بدل گیا. روحے پاکنی سنگت میرا روحے پاکنی سنگت میرا اٹھے نہ بیٹھا بدل گیا زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے. آمین. چلتے پھرتے مسیح کو آپ ظاہر کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر مسیح ہے, نہ بدل چکا. رجوع لانے کا یہی مقصد ہے. آمین. ہاللیلویہ. مجھے پھر سے ہوتی نے فائدہ کرنی ہے. نامی مسیحی نہیں بننا بلکہ ہم نے اوریجنل حقیقی مسیحی بننا ہے. آمین. ہاللیلویہ. پادری صاحب نے کلام کی ساری دعا کر دی تھی. رجوع لائب ہو کے تو شراب چلی جائے. ہاللیلویہ. رجوع لائب ہو کے تو جھوٹا آٹومیٹکلی نکل جائے گا. رجوع لائب ہو کے تو ساری کمزوری چلی جائے گی. پر میری صحت ایجی رہنی ہے نا کہ پادری صاحب کمزور ہے. مطلب کہہ دو پادری صاحب آپ کمزور ہیں, اسی کمزور نہیں ہیں, اسی زبردست ہونے خدا دے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کوئی ایڈا اوکھا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایک رات تے رات کھلون دی ضرورت نہیں ہے. صرف رجوع ہے وہ سب کچھ بدل جائے.
इन्हीं को कहने बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुकाशवा दिया है। इस मुकाशवे को मैं आज लेकर के जा रहा है तो खुदा सारे हालात बदल कर रख देगा। आमीन। तमाम तरह जिंदगियों के लिए जो दूरों नजदीक से आए हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। म्यूजिशियन टीम के लिए, पास्टर अब्बास के लिए, उनकी टीम के लिए, तमाम चर्च के लोगों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ये चाहता हूँ कि हर जुमे हम बाहर से आपके लिए ऐसे जोशीले कदम उगाया करें। क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं को आ जाओ, ठीक है, जरूरी नहीं कि लगातार चर्च पर आओ तो फिर इसी कोई इन्हें को आ जा करो, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹੌਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸਡ ਹੋਵੇ ਤੋਬਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਬੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਂਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਬੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ खुदा दे हज़ूर कि असी जदों अगले जुमे पे भी बहुत जबरदस्त खादम ने और वो भी बड़े जबरदस्त खादम ने, वो तो मेरे घर पक्के तक तो जाएंगे। एडा जवान खादम है। हालेलुया, हालेलुया। अब आए संडे को सारी डिटेल पास्टर कमर साहब बताएंगे। तो नेक्स्ट फ्राइडे भी बहुत बरकत मीटिंग होने जा रही है। आमीन। अब ये चर्च बढ़ना शुरू हो रहा है रूहानी तौर पर, तो खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। पास्टर अब्बास अपने कदमों पर खड़े होंगे। सारे हदियाजात के लिए, कलाम खुदा के लिए, खुदा के कादम के लिए, हेमनी फॉर चर्च के लिए, सारी इंतजामिया के लिए और चर्च की बढ़ोतरी के लिए वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमानी खुदा मेरे खुदा, मैं तेरे हुजूर में आता शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा कि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त होती है, तेरी वफादारी पूछ दर पूछ तेरे लोगों के साथ रहती मेरे खुदा। आसमानी बाप, ये तेरी वफादारी का मंजर है मेरे खुदा कि तू अपने बंदा खादिम को मेरे खुदा दूर नजदीक से मेरे खुदा हेवनली फायर चर्च में लाया मेरे खुदा, ताकि हम तेरे कलाम के वसीले से शिनवा हो मेरे खुदा, बरकत पाए, जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाने वाले हो मेरे खुदा। आसमानी बाप, तेरे हुजूर में आता और शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा खादिम के लिए मेरे खुदा, और इससे बढ़कर मेरे खुदा इस खूबसूरत प्रोसेस के लिए मेरे खुदा जो तेरी बेटियों ने मेरे खुदा, तेरे बेटों ने मेरे खुदा की मेरे खुदा, क्योंकि तू रूह है और जरूर है तेरे परस्तार भी रूह और सच्चाई से तेरी हमद करे मेरे खुदा, और तू ऐसे परस्तार ढूंढता मेरे खुदा जो है खुदा मेरे खुदा रूह से भर कर तेरी हमद करे मेरे खुदा। आसमानी बाप, मैं भाई सरफराज के लिए मेरे खुदा, अपनी बेटियों के लिए मेरे खुदा, पूरी म्यूजिशियन टीम के लिए मेरे खुदा तेरे हुजूर में आता और शुक्रगुजारी करता मेरे खुदा, जो अपना तार साजों पर हाथ रखते मेरे खुदा, तेरे गीत गाते मेरे खुदा, और तेरा तख्त मेरे खुदा तेरे लोगों के दरमियान लगता है मेरे खुदा, और जब तेरा तख्त लगता है मेरे खुदा तो तू बरकतों को मेरे खुदा अपने लोगों की जिंदगी में उंडेलता है मेरे खुदा। तू हमारी कमी कमजोरियों को मेरे खुदा हमारी जिंदगी से दूर कर देता है मेरे खुदा। हम नातवान होते मेरे खुदा, पर तू हमारा जोर और खुदा बन जाता है मेरे खुदा। आसमानी बाप, तेरे हुजूर में आता शुक्रगुजारी करता है मेरे खुदा। बाप, तेरे बंदा खादिम के लिए मेरे खुदा, पास्टर फरहान के लिए अपने मेरे खुदा, पास्टर हामिद के लिए मेरे खुदा, चाहता मेरे खुदा इसी जोश में, इसी अपने पाक के जोर में और ज्यादा बढ़ा मेरे खुदा, अपने बंदों को मेरे खुदा, अपने इंजील की वुसअत के लिए मेरे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदा। वो बेटे तू बड़े मेरे खुदा, वो छुपे तू दिखे मेरे खुदा। आसमानी बाप, अपने कर्म की निगाह कर मेरे खुदा, और जितने लोगों ने मेरे खुदा तेरे दिया में से दिया मेरे खुदा, चाहता हूँ इसकी रात तक इस खुशबू ने मेरे खुदा और आसमान में तेरा अच्छा खजाना है यीशु के नाम से मेरे खुदा तेरे लोगों के लिए खुल जाए मेरे खुदा। किसी बाकी की थोड़, किसी बात की कमी ना रहे मेरे खुदा, बल्कि कितने लबालब तेरी बरकतों से लबरेज होते रहे मेरे खुदा, और अगर तेरे नाम यीशु के जलाल मिलता रहे मेरे खुदा। हम सबके साथ होना मेरे खुदा, हमें बरकत देना मेरे खुदा, हेवनली फायर चर्च की, उसके पासबान को, कलीसिया को मेरे खुदा, सबको मेरे खुदा अपनी बरकतों से लबरेज करना मेरे खुदा। छूने मेरे खुदा बड़ी बरकतें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह अपनी आंखें बंद रखें तो और दुआ करते हैं बेटी राखी रोबन के लिए, जिन्हें खुदा ने सलामती बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, खुदा ने उन्हें सरफराज किया, खुदा ने उन्हें सेहतमंद किया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह बेटी निदा के लिए जो पुर्तगाल में थी, और आपको इल्म है कि हमने दुआ की रिक्वेस्ट रखी थी, खुदा ने वेंट से उतार कर खुदा ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, और बेशुमार ऐसी गवाहियों के लिए जो हमारे दरमियान है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और वही दुआ बा आवाज़ से बुलंद मांगते हैं।
जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर जमीन पर हमें रोज रोज ग्रामीण विकास से रेवरेंड हामिद पॉल हमें रुक सकते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुछ कृपा का शरकत दुनिया भर के तमाम मुकस्सिरों के साथ, हजरत जमात और इस पूरे चर्च के साथ, पासबान के साथ और उनके पाकिस्तान कौम बड़ी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। सब खुश है? खड़े हो जाइए अपने कदमों पर।